केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सर, लगातार सरकार कदम उठाया जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है राजनीति लगातार की जा रही है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया है कि अभी समय है टेरिटरी को रिक्लेम करने का। देखो, ऐसा है कि चोट कहीं लग रही है, चीख कहीं निकल रही है। आज जो है वो अगर चीख जो है वो ये कांग्रेस पार्टी की निकल रही है तो उसका अर्थ भी आप समझ सकते हैं, उसके मकसद भी समझ सकते हैं, उसकी वजह भी समझ सकते हैं। अगर चाइनीज़ ऐप बंद किए जा रहे हैं और भी तरह की जो है वो जो सुरक्षा के, अपने देश की सुरक्षा, अपने देश के लोगों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए काम हो रहे हैं, तो उसके बाद ये फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी के लोग जिस तरह का चीख और जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह के बौखलाहट और बेबुनियाद बयानों में से भरपूर बातें कर रहे हैं, उनको एक बात समझना चाहिए कि आज देश इस तरह के व्यवहार को, इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना बातें हैं उसको पसंद नहीं करेगा और न करने को तैयार है। और जिस तरह से आज पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले में फिक्स ये पार्टी है, उस पार्टी के नेताओं को इस बात का समझ में ही नहीं आ रहा है कि धीरे धीरे वो भी समझदार लोग जो इनकी पार्टी के हैं, इनके सहयोगी हैं, वो भी इनसे खिलाफ होते जा रहे हैं। इनकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकतों से जो है वो नाराज़ होते जा रहे हैं। अब उनको लगता है कि नहीं, जो हम जो कर रहे हैं वही सही है। तो मुझे लग रहा है कि वो एक बार वो सोचें और फैमिली फ़ोटो फ्रेम्स से बाहर निकल करके ग्राउंड रियलिटी को समझें और स्वीकार करें। एक बार सुन लूँगा सर, सरकार ने वहीं चोट मारी है जहाँ सबसे ज़्यादा चोट लगेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लगातार राजनीति इस पूरे मुद्दे पर की है। देखो, यूसिल कहने चोट कहीं पड़ रही है, चीख कहीं निकल रही है, ये तो आप देख ही रहे हैं। Sir, first reaction to the move by government. Well, it is a very bold step of the government in attending the clarion call of Prime Minister Narendra Modi for Atmanirbhar Bharat and vocal on local. Okay, you had been constantly been demanding about the entire block, the entire ban on the Chinese products, whether it's manufacturing, whether it's, how India is dependent upon the raw materials from China regarding various sectors. So how do you think, while Indian government is stressing on Atmanirbharta, how do you think that from now on we will be progressing forward? Because there is a lot of backlog of work that needs to be done before we progress forward. Well, first of all, let me make it very clear that the Confederation of All India Traders, which launched a campaign on 10th of June titled Bhartiya Saman Hamara Abhiman, and in the first phase of the campaign, we have chosen more than 3,000 finished products which are being imported from China and equally are being manufactured in India. So there is as such no issues at all, and we can easily boycott those products. As far as the question of boycotting raw material and spare parts and technology driven goods are concerned, so far this is not in our domain, because we also know that it will take time. You can't boycott all the things at one go, but we will be working with the government, and certainly we will ask the government to provide facilitation to all those small industries in the country to encourage them to produce better and price conscious products in India, whether it is raw material or spare parts or technology goods. Secondly, we have asked our Indian traders, and we will be asking to government also, that till such time the India becomes self-reliant, we should look for some alternate sources also other than China. So I'm sure China is not the only nation, but yes, China is supplying us a great quantity of material. But over last 20 years, I will call it as a fault of not only the government but even the traders and the industries also, that we were failed to find any alternate to Chinese product. सर, कहीं ना कहीं इसको एक बहुत बड़ा कदम देखा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया। कहीं ना कहीं इसकी उम्मीद तो थी, लेकिन इस तरह से करना और मतलब कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा डिसीजन सरकार ले सकती है। देखिए, आपको याद होगा कि जिस वक्त ये जो घटना घटी बॉर्डर पर
उसके बाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान आया और उन्होंने कहा कि भारत चुप नहीं बैठेगा और जो हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है उसका जो है पूरा खामियाजा जो है चाइना को भुगतना पड़ेगा। और जो कल भारत सरकार ने 59 पोर्टल्स जो चाइना के थे उनको जो बैन किया है, मैं समझता हूँ कि वो जो है एक तरीके से वर्चुअल सर्जिकल स्ट्राइक हुई है चाइना के ऊपर। और आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के बालाकोट पर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके बाद आज तक पाकिस्तान उठ नहीं पाया है। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक कल हुई है चाइना के ऊपर, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि चाइना इसको समझने में इतना समय लगाएगा कि चाइना की इकोनॉमी जो है उसके ऊपर बहुत इसका बड़ा असर पड़ेगा। और चाइना में इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा वो चाइना के लिए बहुत भारी पड़ेगा। बड़ा सवाल इसमें ये उठता है सर कि पिछले काफ़ी समय से हम लोग आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया के ऊपर जोर डाल रहे हैं। अगर हम ऐप्स की बात करें, आपकी नॉलेज की अगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐप्स की बात करें तो भारत में ऐसे कौन से ऐप्स होंगे अगर इनके ऑल्टरनेटिव अगर देखा जाए, अगर आप बता सकें? देखिए, भारत की एक खासियत है, जब कभी भी कोई संकट आता है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने आप लोग जो हैं उसको डेवलप कर लेते हैं और बना लेते हैं। मैं एक पीपीई किट का ही उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इस बात को कहा है, जहाँ हमारे यहाँ एक भी पीपीई किट नहीं बनता था, पूरा का पूरा इंपोर्ट हुआ करता था, आज आपको मालूम होना चाहिए 20 लाख पीपीई किट डेली बन रहा है। और अभी कल ही कॉमर्स मिनिस्ट्री ने उसको एक्सपोर्ट के लिए भी ओपन कर दिया है। तो आज हमारी स्थिति वो हो गई है कि हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये भारत की ताकत है। यही तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको दी है कोविड-19 ने।